चलिए आप बोले, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। Good evening, sir. Yeah. I have done my graduation in chemistry, and I belong to a place which is located in the. I belong to a place from a district of a state which comes in the eastern region of India, and district is also known as the gateway of Chota Nagpur. And for the past 3-4 years, I have been preparing for SSC and railway exams. Okay. What about your father and your siblings? Sir, my father, he is a retired serviceman. He has retired in 2013, and right now I have one elder brother who is also preparing for government exams, and I have one sister, and she is in her graduation second year. Okay. Tell me the exact distance of New Delhi from your hometown. Sir, right now I don't know this, but I will definitely look into this. Okay. Do you know the Lajpat Nagar blast occurred in 1996? No, sir, I don't have any idea of that. Okay. I think जैसा कि मुझे मालूम है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर जानते होंगे, ठीक है? तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के आसपास की जो चीजें हैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी रखना अपेक्षित है। बोर्ड मेंबर आपसे ये चीज जानना चाहेगा। ओके, ठीक है? So what issues are main cause for internal security threats in Jharkhand, Bihar, Bastar region and Chhattisgarh and so on? Yes, sir. The regions which you have mentioned, sir, these all regions, they are rich in mineral resources, and somewhat due to illegal mining, and also to gain power in that local area. There is a problem of Naxalism in the following states like Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh and Odisha. Okay. And that is the main thing. And also there are certain other internal security problem things which are indirectly connected, but they all come to the same point of Naxalism. As you have mentioned some other issues, then tell me the other issues. Other issues are, sir, illegal mining. Okay. And the second thing is unemployment. And third thing is, sir, low literacy rate is also somewhat responsible to that thing. And what about sex ratio? Sex ratio is somewhat good only. In Jharkhand, it is about 949, sir. Okay. And health issues? Health issues, yes, sir. The infrastructure of health system is not so good in our state. But again, recently, the government has done good in this COVID time situations, and it has performed well, the recent government. Okay, very good. What is the red corridor? Tell me something. Tell me something about red corridor. What do you know about red corridor? How many states are related to this particular area? Red corridor one, sir. Okay. Yeah. Yes, sir. Around there are around 7 states, namely West Bengal, from where it started, in Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, and some region of Maharashtra, and also Telangana. That Dandakaranya region, वो जो border 3-4 पड़ते हैं वहाँ पे जो states का, वो पूरा region ही एक affected है ये चीज से. And lately sir एक urban naxalism भी देखा जा रहा है. केरला के कुछ districts में है, और गुजरात के भी कुछ इलाके में ये जहाँ पे तो आप सबसे पहले अर्बन नक्सलिज्म को डिफाइन करें, अपने लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करें कि ये क्या है और ये कब से शुरू हुआ
और इस पर अभी रिसेंट में भारतीय सरकार ने या भारत सरकार ने क्या एक्शन लिया हुआ है, ठीक है, बताएं इसके बारे में। सर अर्बन नक्सलिज्म जो है ये एक काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का वर्ड है, और मेनली इसमें जो है कि जो फिजिकल वायलेंस जो कर रहे हैं नक्सल वाले वो तो हैं ही, बट कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, एंड इवन द इंटेलेक्चुअल्स जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ये धारा से जुड़ रहे हैं, एंड वो लोग बिना हथियार का प्रयोग किए हुए एज अ सॉफ्ट पावर ये चीज को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ वगैरह, या फिर कोई लेफ्ट विंग जो है, वो लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं नक्सल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि नक्सलिज्म में क्या होता है कि वो लोग किसी अगर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करते हैं, किसी को मार दिए, कोई नेता को मार दिए, कोई सिविलियन को मार दिए, कोई आर्म फोर्सेस को मार दिए, तो ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं जिसमें कि उनको एक तरीका से सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस अगर कुछ एक्शन लेती है और नक्सल के ऊपर मारती है उनको, तो इन लोग फिर वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन लेकर के पहुंच जाते हैं कि दीज थिंग्स आर तो व्हिच आर मतलब आपका ये कहना है कि ये डायरेक्टली आर्म्स एमुनिशन ना प्रोवाइड करके एक तरह से आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हाँ और यस सर, और इनके लिए कानूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, इनके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, ये सब बातें हैं, हाँ यस सर, और भारत की कानून व्यवस्था को नकारते हुए, हाँ यस ऐसा कहना चाहेंगे। तो ठीक है, तो भारत यस सरकार को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था, तो क्या किया भारत सरकार ने अभी तक? सर। भारत सरकार सर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर, बट अगेन हम इस पे थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि एक्चुअली एक्चुअली आई डोंट हैव आंसर टू दिस राइट नाउ कि अर्बन नक्सलिज्म के खिलाफ सरकार क्या कर रही है। ओके, अभी पास्ट में कुछ लोग जैसे गौतम नवलखा हुए, वरवरा राव हुए, ये सब नाम आपने सुने होंगे। इट्स ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, इनकन्वीनियंस। ओके ओके, बैकग्राउंड नॉइसेस अगर आती हैं तो आप इंटरव्यू मत छोड़ें, उनको आने दें, आप अपना काम करते रहें, ओके, ठीक है। हाँ, तो आप बताएं, मैंने वरवरा राव का नाम लिया, गौतम नवलखा का नाम लिया, इस तरह करके सुधा भारद्वाज जी भी हैं, उसमें ढेर सारे नाम ऐड किए गए थे अर्बन नक्सलिज्म में, और इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई थी। अभी हाल ही में एक स्टालिन करके एक वृद्ध थे, उनकी जो है देहांत, उनका देहांत भी हो गया है। तो ये सब यस सर। इसी चीज से जुड़े थे, तो इनके सारे नाम बताएं जो जो आप जानते हैं, और इनके खिलाफ क्या क्या चार्जेस गवर्नमेंट ने लिया था, क्या क्या एक्शन लिया था, इसके बारे में बता सकें तो बताएं। सर एक मुझे जहां तक पता है, एक सेडिशन लॉ जो है सर, सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी है। आई एम नॉट कंफर्म इन दैट केस, बट ओके, एक है। एंड ये जो अभी स्टालिन जो गए हैं, एंड आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद अर्बन नक्सलिज्म राइट नाउ, ओके, बट एक सेडिशन लॉ चार्ज करती है। बट कहीं ना कहीं सर वो सेडिशन लॉ जो है वो खुद में ही कहीं ना कहीं एक हमको लगता है कि वो मतलब कि खुद ही उस पर बहुत ज्यादा एक्यूजेशन है कि गवर्नमेंट उसको अपने खिलाफ, लोगों जो उस पर काम कर रहे हैं उसको दबाने के लिए उसका प्रयोग करती है। हम्म, तो ऐसा कोई रिपोर्ट होगी, आपको पता होगा, तब आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया या फिर अपने मन से बता रहे हैं? नहीं सर, रिपोर्ट है, क्योंकि जो फाइनल कन्विक्शन रेट होता है वो काफी कम है इन सब केसेस में, तो जो भी ये सब चीज में अरेस्ट होते हैं, तो जो ये सेडिशन लॉ कंट्री में जो डाला गया। कन्विक्शन रेट पर एनसीआरबी एक रिपोर्ट अपनी पेश करती है, तो एनसीआरबी ने अभी जो रिपोर्ट दी है उसमें सेडिशन लॉ के अंडर में कितना कन्विक्शन रेट है, उसने कुछ बताया होगा, आप बताएं जरा इस पे, अगर आपने बात करी है सर राइट, कन्विक्शन रेट की तो बताएं। यस सर। एक्चुअली सर ये जो हम हैं अभी अभी हम ये सेडिशन लॉ का सर हम प्रिपेयर किए थे, अलग से थोड़ा अलग पॉइंट आई एम एडिंग चलिए ओवर चलिए, हियर। ठीक है ठीक है। जो मेरा एसे का जो टॉपिक था हम उसमें सेडिशन लॉ पे प्रिपेयर कर रहे थे, उस समय ज्यादा चर्चा पे था, तो राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, बट आई विल लुक इनटू ओके इट। ओके, डेफिनेटली यू शुड लुक इनटू दिस। तो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। Sir, most memorable moment, I think, sir, that was in 11th class when I passed 11th class, because I was a failure in the semester exams, but again, during the final exams, I topped in 11th class. तो कैसे आप फेल कैसे हो गए 11th में?
सर रूटीन मेरा कुछ इस तरीका से बना 10th के बाद से कि हम स्कूल का जो रूटीन मैचअप नहीं कर पाने लगे, और सही से खाना पीना नहीं मिलता था, तो उस वजह से हम स्कूल जाना पसंद नहीं करने लगे घर कहीं से ना कहीं। बाहर रहते थे? हाँ यस सर। अच्छा, खाना खुद से बनाना खाना पसंद होता? नहीं करने लगे, और कहीं ना कहीं वो चीज मेरा मन नहीं करने लगा पढ़ने का, और हम फेल हुए। बट फाइनली जब 11th का फाइनल आया तो मेरा डर ये था कि हम्म, अगर 11th का फाइनल में फेल किए तो आई विल बी टोल्ड टू रिपीट द क्लास। तो हम्म, और क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो मुझे पता था कि घर में फिर मेरा अच्छा से क्लास लिया जाएगा, उस वजह से फिर पढ़ाई अच्छा किया और फिर टॉप कर गए सर हम 11th। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप हमें बताएं, 2017 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज के विनर्स के नाम। 2017 में। यस सर। हम्म, राइट नाउ आई कांट रिकॉल द नेम्स, बट आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। ओके, ओके। हाउ मेनी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स डू यू स्पीक वेरी वेल? Sir, I speak Hindi, English, and one our regional language of Khortha. And I don't speak Bhojpuri, but I understand it. ओके। अलका याग्निक का एक गाना है और वो पैट्रियट सॉन्ग है। उस सॉन्ग की शुरू की दो पंक्तियां बता देंगे हमें आप? Patriotic song. यस। सर अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है वो गाना। अच्छा, ठीक है। तो अलका याग्निक का आपका कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है आपको? सर जो भी रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं उनके वो अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है, कान को रिलैक्स फील करते हैं, तो वो उनका चलिए, गाना सुनना पसंद। आपका कोई एक पसंदीदा गाना, उसकी शुरू की दो लाइनें बता दीजिए, गा कर बता दीजिए, या फिर जैसे मन को बताइए। अच्छा यस सर। सर ये एक गाना है, हम तुम करके गाना है, वो गाना में बाबुल सुप्रियो जी गाए हैं और ये गाए हैं, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। ओके। और I don't actually remember that song right now, sir. बट योर फेवरेट सिंगर इज अलका याग्निक। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? Favorite cricketer is sir Mahendra Singh Dhoni. ओ, ये झारखंड रांची से बिलोंग करते हैं इसलिए, या फिर कुछ खूबी है इनमें? नहीं सर वो बात नहीं है, आई पर्सनली लाइक हिम ड्यू टू हिज नेचुरल बिहेवियर ऑल्सो। का मतलब इनका जो भी ऑरा है, पर्सनालिटी है, और कोई भी चीज को आंसर करने का जो क्षमता है, ये बहुत ही बैलेंस्ड वे में देते हैं, तो इसीलिए इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आप कभी उनसे मिल पाए हैं? नहीं सर, मिलने का तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, बट देखे हैं दूर से। दूर से देखें। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, It has seen that western part of India is more prosperous than eastern, while most mineral concentration is found in eastern part of India. Why? sir, pardon sir, I didn't heard it properly. ओके, मैं इसे हिंदी में कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जो हमारा Yes, हमारे भारत का जो वेस्ट पार्ट है वो बहुत yes sir, समृद्ध है, व्यवसाय के मामले में, वाणिज्य के मामले में। ठीक है। yes sir. लेकिन हम देखते हैं जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वो आपका मिनरल सोर्स हो गया या फिर नेचुरल सोर्स हो गया, इसमें ज्यादा समृद्ध है। लेकिन जो गरीबी है वो आपके ईस्टर्न पार्ट में दिखती है, जबकि आपकी जो अमीरी है वो वेस्टर्न पार्ट में दिखती है। तो ये कैसे संभव हो सका, ये कैसे हो गया? Yes sir. सर ये जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर मिनरल्स तो है, नो डाउट इस पे। हम्म, लेकिन सर बात ऐसा है कि जो भी शुरू से ही ब्रिटिशर्स के समय से ही यहाँ हम्म, पर मेन फोकस मिनरल्स पे ही रहा है सरकारों का। तो वो हम्म, लोग सीधा कोई तरीका से सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। और वो डेवलपमेंट जो होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, वो नक्सलिज्म, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को हिंडर करती है। हम्म, एंड कुछ कुछ ट्राइबल पीपल्स भी जो हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं ये इन सब चीजों को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी, क्योंकि हम्म, उनको ऐसा खतरा महसूस होता है कि उनका जो भी जल जंगल जमीन है वहां पर से उनको बेदखल कर दिया जाएगा। ये भी कुछ कुछ थोड़े कारण है। तो इस कारण को समाप्त करने का आपके पास कोई इलाज है? कुछ सोचा है आपने कि जॉब में आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये समस्याएं समाप्त हो, वहां पर जो है इम्प्रूवमेंट हो?
सर फिलहाल तो अभी सोचे नहीं है, बट एक चीज तो है कि जो सरकार है उन्हीं के वही लोग कुछ कर सकते हैं, पॉलिटिकल पावर जिनके पास है, एंड इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिनको कि ग्राउंड स्तर पर वो चीजों को लागू करना होता है, उन्हें करना पड़ेगा ये सब चीज को सर। और जो हमारा वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वो इतना समृद्ध कैसे हो गया? जैसे आप गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, और गोवा भी ले लीजिए आप, है ना, कर्नाटका ले लीजिए, सब बहुत समृद्ध हैं। अगर हम कंपेयर करें झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब से, तो पता है। सर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। Describe intelligence failure and tell me at least two incidents caused by intelligence failure in India. सर इंटेलिजेंस फेलियर उसको बोल सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस या जो भी इनपुट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे जहां पर उसको पहुंचना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंचा। इंटेलिजेंस तो को, उस हाँ या, यस या, सर, या जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट्स को। वगैरह है अगर टाइमली नहीं पहुंचता है तो फिर वो एक फेलियर ही माना जाएगा सर। अच्छा, कभी कभी एंड टाइमली पहुंचता है लेकिन इग्नोरेंस की वजह से भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती चीजें, क्या ऐसा होता है अपने इंडिया कहीं में? ना कहीं कभी कभी सर कोऑर्डिनेशन के वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है सर। अच्छा, ठीक है। तो कोई ऐसे दो इंसिडेंट बताएं जिनसे हमारे यहाँ इंटेलिजेंस फेलर हुआ था और वो दुर्घटनाएं हमारे यहाँ घटित हो गई। सर जो सर 1962 और 1965 पे वॉर थे सर, एक पाकिस्तान और एक चाइना के साथ में, ओके। वो वहां पे बोला जाता है कि फेल हुआ था क्योंकि इंटेलिजेंस पहले फेलर। इंटेलिजेंस ब्यूरो ही सारे देखता था और जस्ट उसके बाद फिर रॉ का फॉर्मेशन होता है सर। चलिए, ये तो बहुत पुरानी तो बात हो गई। एक्यूजिशन। ये पुरानी बात हो गई। आप एकदम लेटेस्ट की बात बताइए कि अभी लेटेस्ट में इंटेलिजेंस फेलर हो गए हैं, और दो घटनाएं बता दीजिए आप। सर लेटेस्ट में जहां तक एक मुझे याद आ रहा है सर, 2019 में जो पुलवामा अटैक्स हुए थे वहां पर एक बोला जा रहा था कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। ओ, और बट हालांकि ये सब बट एक्यूजेशन थे सर। बट रिपोर्ट्स में उस समय दो रिपोर्ट देखी गई न्यूज़पेपर्स में। एक रिपोर्ट थी कि 11 टाइम इनके इंटेलिजेंस को इग्नोर किया गया, पहली बात। दूसरी बात, न्यूज़पेपर्स में ये भी देखा गया कि इस घटना का जिम्मेदार इंटेलिजेंस फेलर को माना गया। तो आप इन दोनों में किस बात से सहमत है कि इंटेलिजेंस फेलर हुआ या 11 टाइम इग्नोर किया गया इंटेलिजेंस को? सर बेसिकली तो सर ये कोऑर्डिनेशन का ही प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो इसको नहीं बोला जा सकता है क्योंकि जो उनका काम था उन्होंने तो इनपुट्स दे दिया था अपने तरफ से। जो रिसीविंग एंड पे था उन्हें इस पे एक्ट करना चाहिए था। सर एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है सर, वो छत्तीसगढ़ का सुकमा डिस्ट्रिक्ट में अभी कुछ दिन पहले जो नक्सल अटैक हुआ था, जो एम्बुश करके हम लोग का 20-21 जो सीआरपीएफ के जवान का जो डेथ हुआ है, वो एक थोड़ा सा हालांकि वहां पे भी जानकारी थी कि इन लोग के पास प्रॉपर इंटेलिजेंस था कि वहां पर हैं छिपे हुए, बट कहीं ना कहीं फिर यही लोग फंस गए थे वो जाल में वहां जा करके। हिडमा को ऐसा पकड़ने लगा गए कि थे वो ये लोग। लोग, कोबरा बटालियन था, और यस आपका सर, कोबरा बटालियन। डीआरजी के कुछ जवान थे, और स्टेट पुलिस के यस जो स्पेशल जवान थे वो थे। यस ये सर। आपके तीन तरह की वहां पे फोर्सेस थी, और तीनों जंगल वारफेयर में वेल ट्रेंड थी, और ये लोग यस सर। हिडमा का इनपुट पाए थे। 22 यस सर। आपके वीर जवान शहीद हुए थे, और एक यस सर। मनहास जी जम्मू कश्मीर के थे, वो पकड़े गए थे तो बाद में रिहा किए गए। और अच्छा। इसमें इसमें 24 घंटे तक आपके जवानों की जो शव थे या 36 शरीर थे, वो पड़े हुए थे। तो ऐसा वहां पर क्या समस्या खड़ी हुई कि हम लोगों ने 24 घंटे तक नहीं छोड़ रखा, वहां तक चॉपर नहीं पहुंचा, और मजबूत इंटेलिजेंस होने के बावजूद ये घटना हो गई। इसमें ऑफिसर्स की गलतियां पाते हैं या जवानों की गलतियां पाते हैं? आप किसे कहेंगे? क्योंकि यहाँ इंटेलिजेंस फेलर नहीं है। हाँ सर, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। इसमें आप डिफाइन करिए चीज को। सर इस पे तो फोर्सेस को भी ब्लेम करना यहाँ पर इस चीजों के लिए ये मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा, क्योंकि
वो लोग तो अपने प्लान के थ्रू ही गए थे, बट कहीं ना कहीं उसमें जाकर के इस तरीका से ये नक्सलियों ने गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स में उन लोग थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं खुद, तो वो लोग ज्यादा कहीं ना कहीं वो टेरेन को, जो भी वहाँ का लोकल ट्रेन है उस जगह का, उसको वो लोग ज्यादा अच्छी तरीका से समझते हैं। और मुझे लगता है कि आपने इस जो घटना है इसके बारे में स्टडी नहीं Yes. करी है। ये आपकी घटना अप्रैल की है और इसमें क्या हुआ था कि आपके जो जवान हैं डीआरजी के और कोबरा बटालियन के, ये बहुत ट्रेंड है, इनके पास नक्सलियों से बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। ये कहना गलत है जो आप कह रहे हैं कि जंगल वारफेयर में नक्सलाइट्स ज्यादा अच्छे हैं, नहीं, हम लोग ज्यादा अच्छे हैं, हमारी फोर्सेस ज्यादा अच्छी हैं। वहां पर इन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था जो वार का, तो नक्सली भाग गए थे। जब ये लोग इवैक्यूएशन कर रहे थे, रिटर्न हो रहे थे वहां से, तब इनके ऊपर एम्बुश हुआ। तो वहां पर गलती हुई थी और मैं उसी गलती की बात आपसे पूछ रहा था। चलिए जाने दीजिए, आपने स्टडी नहीं की है इसके बारे में। आप हमें 5 इंटेलिजेंस एजेंसियां बताएं भारत की, जो भारत सरकार के साथ काम करती है, भारत सरकार के अंडर में काम करती है। 5 नाम बताएं। फर्स्ट वन इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, ओके the second one is raw research and analysis wing, ओके third one is sir NIA National Investigation Agency, fourth one is sir DRI करके है सर, कोई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, हाँ, और एंड फिफ्थ वन इज सर एक NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Tell me the exact coordinates of New Delhi. Sir, I don't know right now, sir. Coordinates, okay. If I give two joining letters in your hand at same time, one of income tax inspector one appointment letter belongs to income tax inspector, which is selected from SSC CGL examination, and second one is IBACIU. What will be your preference that time? Sir, at that time I will choose sir IBACIU. Why not income tax inspector? As you are giving examination SC and banking, as you mentioned before. Yes sir, वो एक बात है सर, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ SSC, बट अगेन राइट नाउ जो लेवल तक अभी हम पहुंचे हैं, इस लेवल तक हम SSC एग्जाम्स में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मेंटली भी इन्वॉल्व है इस चीज में, तो फिलहाल अभी हम IB को ही लेना चाहेंगे सर। कैसे, क्या आपने मेंटली सोच रखा हुआ है IB के लिए, कैसे इन्वॉल्व है आप, इसको डिस्क्राइब करें। यस सर, सर जो भी था इनका एग्जाम्स का तो प्रिपरेशन चल ही रहा है, और फिलहाल सर जो भी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी से जो मैटर्स थे, कैसे कैसे डील किया जाता है, वो सब मुझे पहले उतना जानकारी नहीं था, बट कहीं ना कहीं ये सब पढ़ाई करते के दौरान मेंटली हम इन सब चीजों को, देश के प्रति लगाव आपका धीरे धीरे नॉलेज के साथ बढ़ा, यही कहना चाहते हैं आप। यस सर, स्टडी के साथ साथ लगाव हो गया, चलिए अच्छी बात है। आप आपकी रीजनल एक समस्या है रीजन की, भोजपुरी लैंग्वेज की। तो देखा गया कि भोजपुरी गाने हमारी सोसाइटी को दूषित कर रहे हैं, तो इस पर क्या विचार है? बस 1-2 लाइन में इसका जवाब दो शॉर्ट में। हाँ सर, दूषित कर रहे हैं, एग्री करते हैं, तो इस पर आप समाधान कैसे पाएंगे? समाधान सर, जो भी म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, जो लिरिक्स वगैरह लिखते हैं, उनको कहीं ना कहीं समाज को ध्यान में रखकर गाना बनाना चाहिए सर। एंड ऊपर से गवर्नमेंट के भी कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के, जिससे हमारी कल्चर, जो भोजपुरी कल्चर, वो भी बची रहे और थोड़ा सा सोसाइटी में प्रदूषण ना हो। हाँ यस सर, यस सर। Recently it has seen that people from Kerala are more intent to join ISIS. Recent report from The Hindu, 4 women joined ISIS on 11th June, and another news from News 18, 40 residents of Kerala joined ISIS on 28th August. ये ऐसी वहां पर क्या बात है कि केरल से ही इतने बड़ी संख्या में लोग ISIS को ज्वाइन करते हैं? तो सबसे पहले तो आप ISIS बताइए क्या है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में?
और फिर दूसरी ये जो भारत से कनेक्टिविटी है ISIS की, खासकर केरला से, मैंने आपको रिपोर्ट्स भी बताई हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इन यस सर। इन लोगों का भारत के प्रति क्यों लगाव होगा? चलिए, आप आपके पास 3 स्टेप है बताने के। पहला, ISIS क्या है। दूसरा, कनेक्टिविटी बतानी है कि ये केरला से ही क्यों ऐसा कनेक्टेड है। तीसरा, केरला जो हमारा साउथ रीजन है वो भारत के प्रति लगाव क्यों कम रखता है। जस्टिफाई करें तीनों चीजों को। सर फर्स्ट जो है सर कि ISIS जो है ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है सर। हम्म, और ये चाहते हैं कि इन लोग पूरा जो इराक और सीरिया का जो रीजन है उसको पूरा इस्लाम से अपना जो भी अपना रीजन रूल करे वहां पर सर। हम्म, इस्लाम का एक रूल वहां पर इन लोग के हम्म, द्वारा स्थापित किया गया। हम्म, और फाइनली इन लोग सर ये ISIS का नाम हटा करके IS कर दे रहे हैं। हम्म। उन्होंने इसका नाम बदलकर ISIS कर दिया। ठीक है, Yes, अब इसके आगे की चीज बताएं। सर आगे का जो सर केरला से क्या कनेक्शन है वो एग्जैक्टली पता नहीं है सर। एंड ऑल्सो द वो इंडिया के साथ भी उनका क्या अफेक्शन है, आई ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दैट। ओके, और केरला के लोग भारत के प्रति समर्पण कम रखते हैं क्या? इस बात से आप एग्री करते हैं? सर एग्री तो नहीं करते हैं बट बीच बीच में कुछ इंसिडेंट्स इस तरीका से आ जाता है जिसमें कि उस टाइप का फील होता है कि कहीं ना कहीं डिसकंटेंट है वहां के लोगों को। कैसा कैसा इंसिडेंट हो जाता है? कुछ एक उदाहरण की तरफ समझा देंगे? एग्जैक्टली आई आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग बट कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं उस टाइप का तो आई मतलब वो चलिए पर्सनली चलिए निकल गया अंदर से। चलिए चलिए। 5 क्वालिटीज टू बी अ गुड इंटेलिजेंस ऑफिसर। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर में 5 ऐसे गुण बताइए जो होने चाहिए। सर आई डिडंट गेट दैट प्रॉपर्ली सर। टेल मी द 5 क्वालिटीज टू बी अ गुड यस सर। इंटेलिजेंस ऑफिसर। सर समझ नहीं आ रहा सर हमको। अच्छा अच्छा, किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर के अंदर, किसी आदमी के यस अंदर सर। 5 क्वालिटीज ऐसी कौन सी होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा इंटेलिजेंस ऑफिसर बन सके? ओके सर। हम्म, सर फर्स्ट थिंग एक तो अलर्टनेस उसको होना चाहिए सर। ओके। सेकेंड थिंग सर पेशेंस एक होना चाहिए। हम्म, थर्ड सर एक इंट्रोवर्ट टाइप का होना चाहिए जो कि सीक्रेट जल्दी से रिवील ना करता, अपना आइडेंटिटी छुपा करके रखता हो। गुड गुड। फोर्थ थिंग सर डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए ताकि वो कहीं पे फंस जाए तो वो तुरंत उस हिसाब से रिएक्ट कर सके। हम्म, एंड फिफ्थ सर एक डेडिकेटेड और डेडिकेटेड रहना चाहिए सर एक मतलब। चलिए ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम आपको एक सिचुएशन देते हैं और यस आप इस सिचुएशन पर रिएक्ट करिए कि आप क्या करेंगे। ठीक है? सर। आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं ऐसा आप मान लीजिए, और आपको इंटेलिजेंस कलेक्ट करनी है किसी एक ऐसे ग्रुप से जो एक ट्रेंड मिलिटेंट ग्रुप है या एक आतंकवादी ग्रुप है। ठीक है? और उसके कुछ सदस्य आपके ही पहुंच में एक चाय की दुकान, वहां चाय पीने आते हैं, अक्सर आते यस जाते सर। रहते हैं। और आपको उनसे बहुत ही सावधानी पूर्वक इंटेलिजेंस कलेक्ट करना है, उनकी एक्टिविटी देखनी है, जाननी है। और आपको पता है कि उन्हें अगर भनक लगती है तो आप इंटेलिजेंस नहीं कलेक्ट कर पाएंगे और भविष्य में होने वाली दुर्घटना के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठी कर पाएंगे। आपके पास यस सर। 3 रास्ते हैं उनकी इंटेलिजेंस कवर करने की या कलेक्ट करने की। पहली है किसी एक सदस्य की गोपनीय गिरफ्तारी करवा करके। दूसरी है कि आप खुद नग्न होकर, पागल बनकर, समझ रहे हैं बात हमारी? नग्न का यस मतलब सर। विदाउट एनी क्लॉथ, एकदम नंगे, यस पागल, भूखे, आपके पास कोई खाना, कोई रहना, कोई मोबाइल, कुछ नहीं। इस तरह आप 20 दिन रह करके इंटेलिजेंस कलेक्ट करना पसंद करेंगे। तीसरा, वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे, उन लोगों के बारे में पूछताछ करके जानना चाहेंगे। तो सर सिचुएशन समझ में मैं आ थर्ड गई? ऑप्शन के साथ। अच्छा, हाँ यस थर्ड सर। मतलब कि यस आप सर। इंटेलिजेंस शेयर करके कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लोकल लोगों के साथ सूचना शेयर कर देंगे और आप तब उनके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे, ऐसा मानना है आपका? नहीं सर ऐसा मेरा मानना नहीं है लेकिन जहां जहां पर इस तरह की गतिविधियां होती हैं अगर
टेररिस्ट आउटफिट्स हैं तब तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, बट हम जो कंडीशन बता रहे हैं वो नक्सलिज्म से हम रिलेटेड बता रहे हैं। नहीं, मैंने आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन दी है, मैंने आपको सिचुएशन दी है और बताया है कि ट्रेंड मिलिटेंट ग्रुप है वो, नक्सलाइट्स ओके नहीं सॉरी है। सर, हाँ, तो आपको पूरी सॉरी सिचुएशन समझनी चाहिए। ट्रेंड मिलिटेंट ग्रुप है वो, और आपके सामने ऐसी तीन व्यवस्था थी कि आप कैसे करेक्ट करना पसंद करेंगे। तो आप एक बार मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको मौका देता हूँ। सर वो तब फिर सर हम वो उनको जो है सर जो भी है सिक्योरिटी एजेंसी से एक उनका मेंबर को पकड़वा करके अच्छा, जो भी है वो आगे प्रोसेस वो करेंगे। उनका एक सिक्योरिटी मेंबर आपने पकड़ा और उनको जानकारी हो जाएगी और वो अपना पूरा प्लान बदल देंगे। ये भी तो होगा, वो चाय पी करके घर नहीं लौटेगा तो उनको तो भनक लग जाएगी ना, आपका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। और वो अपनी जो दुर्घटना करना चाहते हैं वो आधे घंटे आगे पीछे करके या एक दो दिन आगे पीछे कर देंगे। आपका आपका प्लान तो फेल हो गया, उनका प्लान सक्सेस हो जाएगा। आप नंगे क्यों नहीं होना चाहते हैं एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर? सर कोई उसमें इशू नहीं है सर, आई कैन डू दैट थिंग। कितने दिन तक आप नंगे बट घूम सकते हैं इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए भारत माता की रक्षा के लिए? हाँ यस सर, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर, बट राइट नाउ आई डिडंट आंसर दैट थिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही हम वो चीज आंसर करेंगे तो वो थोड़ा ओवर टाइप का चीज हो जाएगा कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा ओवर हो जाएगा। मैक्सिमम जो इंटेलिजेंस कलेक्शन होता है वो लोग पागल बन करके, भिखारी बन करके, साधु का वेश धारण करके, डिस्गाइज होकर के यही करते हैं। आपको मालूम ही होगा कि जितना भी इंटेलिजेंस कलेक्शन होता हाँ है यस डायरेक्ट सर, डायरेक्ट तो होता नहीं, डिस्गाइज होकर के ही हाँ होता यस है। सर, बीच में एक ऑप्शन था आपके पास। यस। चलिए जाने देते हैं। आपके पास एक अंतिम सवाल हम रखते हैं और फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू समाप्त करेंगे आज के लिए। कि you have given an opportunity to convince us to select you। ठीक है, यस सर। तो आप हमें कन्विंस कर लें कि हम आपको सिलेक्ट करें। आप कैसे कन्विंस करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हार्ड वर्किंग सर, sincere, ready to obey orders, and also I am dedicated to my work. My focus point is good, and sir, since I belong to a Naxal affected district, I think that the little experience of extra pressure, maybe I think that that can help me if I get in such kind of situations. Okay, good. Okay, all the best for your future. Let's stop the interview. Okay. Okay.